نہیں ڈاکٹر صاحب تو شاہد صاحب نے اس کو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں شناختی کارڈ شاہد صاحب کا نام لکھیا انہیں نہیں ہو میرے کو میری گندی اولاد نہ بناؤ، اے کھلا اعتراض ہے۔ نہیں یہ الزام ہے شاہد صاحب، مطلب 100 سال دا فرق ہے۔ اولاد گل اے کہ نہیں وہ ڈاکٹر صاحب پرچہ تو ایک ہی بندے پہ کٹے گا نا؟ نہیں اس کے 2 کینڈیڈیٹ ہیں جی، ابھی مجھے کسی نے بتایا۔ پہلا کینڈیڈیٹ ہے غلام محمد۔ اب وہ کینڈیڈیٹ ایسے ہے کہ 5 بھائی تھے غلام مرتضی ملا کر، ان میں سے غلام محی الدین، غلام مرتضی اور عبد القادر جو تھا وہ فوج میں بھرتی ہو گئے، دل خالصہ میں، سکھوں کی فوج۔ 2 پیچھے رہ گئے، ان میں سے جو غلام محمد تھا اور دوسرا تھا وہ دونوں ادھر ہی رہتے تھے جہاں پر مرزے کی ماں رہتی تھی۔ اب غلام محمد کا ایک لڑکا بھی قادر نام کا تھا یا قدیر نام کا تھا، وہ بھی ادھر موجود تھا۔ تو اب ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے کہ کیا ان دونوں میں سے مرزے کا اصلی باپ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب قادیانی ڈی این اے ٹیسٹ نہ کرتے ہیں نہ کروانے دیتے ہیں، مطلب مرزے کا باپ کا تو پتہ لگے نا۔ نہیں بڑی سیریس بات ہے۔ الیگزینڈر ڈوئی نے بھی مرزے سے کہا تھا کہ یہ حرام کی اولاد ہے، اس کا باپ نامعلوم ہے۔ اب کوئی مجھے بتائے کہ الیگزینڈر ڈوئی نے کیوں کہا تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس مجھ سے بھی اچھا ثبوت موجود ہو۔ تھلے بنٹی سدھو ہے، یہ بھی پیو کا کونی جو پتا۔ اچھا اچھا میری براڈ دے اتنے ڈاکٹر صاحب مرضی انج آندے نے جویں نہ سکا بہنوئی لبنا، بہنوئی نہیں لگنا، ابو نو ویکھ کے آندے نے، انج نہ کرو شاہد صاحب۔ اور نہیں انہیں آپ پر شک ہے کسی بات کا شاہد صاحب۔ اوئے شاہ جی اے وائنا دے اتنے نا اگے جنگلا لا چڑو گے، کنجر دے بچے چوک کے نہ لے جان مرزے دی نہیں بوتلاں گن کے رکھی ہیں میں۔ یہ کیڑا شاہد صاحب دی ٹٹی ہے جڑی چوک کے لے جانی ہے انہاں نے، انہاں تو محبت او دے نال ہے نا۔ اے بابا جی حقیقی گل جے کہ اے جڑی نے مرزے دیاں وائنا جے جڑیاں او دے ٹیسٹ پٹی او 36 تے پئی ہوندیاں 24 گھنٹے۔ نہیں تصویر تو اتنی پرانی لگتی ہے ویسے ڈاکٹر صاحب اوریجنل پکچر جے، اوریجنل قسم چوک کے کہنا۔ شاہ جی آپ کو پتہ ہے نا مرزا کس قسم کی وائن پیتا تھا؟ ایک ٹونک وائن پیتا تھا، ہاں جی، کوکو وائن، کوکو وائن پیتا تھا ایک، اور ایک وائن آف کردوی۔ نہیں وہ ہوتی ہے، وہ وائن اور اسپرٹ کے درمیان کی چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں وہ، مطلب اس کو چرچ میں بھی بڑا یوز کرتے ہیں وہ چرچ لیکن میں۔ ہم اس کو نا اپنی برانڈی نہیں وہ برانڈی نہیں ہے اس کا نام، ہم اپنے پاکستانی زبان نہ بیئر نہیں ہے وہ، ہم اس کو پاکستان میں نا اپنی زبان میں پونڈا کہتے ہیں۔ پونڈا نہیں وہ میٹھی ہوتی ہے، مجھے نام یاد آئے گا میں آپ کو۔ شاہ جی میں آپ کو بتاؤں، مرزائی کہتے ہیں نا ٹانک وائن دوائی ہے، تو وائن کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا، آپ کو شاید پتا ہے یا نہیں، یہ 9% ویک وائن ہوتی ہے اور 13 سے 15% تک اسٹرانگ وائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی الکوہل اور وسکی کی پرسنٹیج 40% ہوتی ہے۔ جو ٹانک وائن ہے نا یہ 28% ہوتی ہے، آپ سوچیں کتنی ہے پکی، یہ 28% ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ آرڈنری وائن کی اسٹرینتھ کو ڈبل کریں تو ٹانک وائن بنتی ہے۔ ایسی بات ہے۔ مرزا اتنا شرابی تھا، اور ایک واقعہ لکھا ہے جی، اس کے منہ سے خون آیا اور ڈاکٹر کو بلایا، اور لکھتے ہیں کہ اس نے مم کچھ کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، انہوں نے ساری سمجھ آئی، انہیں کیا کہ شراب انہیں سال انہیں پیتی ہے، ہوں بند کر دو نہیں تو کہیں ختم۔ بس اسی طرح ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کی کوئی ایکسیس ہوئی نا یا کوئی جاننے والا ہوا تو یہ سدرلینڈ والی ڈائری کا چیک کروائیے گا۔ ہاں دیکھیں میرا کوئی جاننے والا ہے نہیں ہے، ان کے ایسا بھی اللہ تعالیٰ صورت پیدا کرتا ہے تو
हाँ, सदरलैंड की डायरी के बारे में किसी ने पहले भी बात की थी कुछ अर्सा पहले, तो आपने तो लोकेशन बताई है कि शाही किला में जो म्यूजियम है उसमें रखी है उसकी चीजें। हाँ, शाही किला में जो म्यूजियम है ना, उसका जो आर्काइव डिपार्टमेंट है, उसमें बम्बा सदरलैंड की जो बिलोंगिंग्स थी ना, जो चीजें थी, जी जी, वो पड़ी हुई हैं, लेकिन वो डिस्प्ले पे नहीं है। अच्छा, अगर कभी कोई ऐसा आदमी इल्म में आया तो क्योंकि उसे उसने कहेंगे। अपने मरने से पहले ना, ये सारी की सारी जो थी चीजें, इसमें कुछ पेंटिंग्स भी थी, कुछ आपको मैं एक sword तरीका बताऊं, आप उसका इंटरनेट पर सर्च करें तो उसका कोई होगा क्यूरेटर, क्यूरेटर इंचार्ज होता है जिसको एक्सेस होती है इसके जो चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं ना, तो आप क्यूरेटर को ख़त लिखें कि हमें इंटरेस्ट है इस बात में, क्या ऐसी डायरी मौजूद है और उसके कंटेंट्स आजकल तो उन्होंने कॉपी किए हुए हैं ना, स्कैन किए हुए हैं, हर चीज़ का स्कैन मौजूद है आजकल, तो अगर उसके पास स्कैन है तो वो आपको दे देगा। ये कोई ऑफिशियल सीक्रेट थोड़ी है सदरलैंड की डायरी। तो मैं भी लिखूंगा उसको, आज ही लिखूंगा मैं उसे, उसका तलाश करके ना कौन क्यूरेटर है। मैं तो आदतन सुबह 1.5 घंटा ईमेल लिखता हूँ दुनिया भर के। क्योंकि ये मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना इसको चेक किया था, तो ये जो जितनी भी चीजें थी ना इसकी बम्बा सदरलैंड की, उसमें कुछ डायरीज भी थी, कुछ पेंटिंग्स थी, कुछ सॉर्ट्स थी, एम्बलेम्स थे, कुछ इस तरह की मुख्तलिफ चीजें थी। तो ये इसने मरने से पहले अपना जो सेक्रेटरी था उसके हवाले कर दी थी, उसने फिर बाद में ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दी थी, फिर इन लोगों ने आर्काइव डिपार्टमेंट को दे दी थी। अच्छा, जो आर्कियोलॉजी का है इनका। हाँ जी, आर्कियोलॉजी का। ठीक है, हम उन्हें खत लिख के ईमेल करेंगे तो सिकंदर भाई मुझे जवाब आ पर्सनल जाता में है, कर कभी दें। नहीं आता जी। मैं कोशिश करता हूँ, इधर मेरे दोस्त हैं कुछ, तो मैं उनके साथ बात करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं निकलवाने की। मैं लाहौर में ही होता हूँ। अच्छा, आप लाहौर में हैं तो आप तो वहाँ जाके भी क्यूरेटर को कह सकते हैं कि भाई डायरी है ऐसी, वो आपको बता देंगे। हाँ, बम्बा सदरलैंड जो है ना, उसकी जो चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें कोई डायरी है उसके हस्बैंड सदरलैंड की या नहीं, डॉक्टर सदरलैंड? नहीं, उन्होंने देखें, जब उनके पास पोजेशन में जाते हैं ना, आर्टिफैक्ट कहते हैं इनको, तो जितने आर्टिफैक्ट होंगे उन्होंने उसकी लिस्ट बनाई होगी और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो अगर हुई तो वो तो 1 मिनट में बता देंगे कि है या नहीं उनके पास। तो आपने क्या, किस सवाल का जवाब लेना है कि मिर्जे के साथ सदरलैंड ने तो मिर्जे को नहीं देखा था मरते वक्त, आपको इल्म नहीं है? नहीं, वो तो ये कहते हैं ना कि जो इन लोगों ने खत लिखा था उसने इसके लिए। हाँ, जो खत लिखवाया था लाश को लेके जाने के लिए, और उसके खत में जो कुछ लिखा है ना वो बड़ा डॉजी है। उसने ये नहीं लिखा कि इसको वबाई हैजा नहीं हुआ, उसने कहा था कि इसको अपेरेंटली जो है ना सिम्टम्स वो इस किस्म के थे, और उसने कहा कि इसको इजाज़त रेस्ट्रिक्टेड परमिशन उसको कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में पक्का यकीन ना हो, क्योंकि इनकी दोस्ती थी उस वक्त की हुकूमत वालों से, जान पहचान थी, तो उसने इजाज़त दी, लेकिन उसने साथ में ये लिख दिया कि कोई इसके साथ ट्रैवल ना करे, और नंबर 2 जो पैसेंजर गाड़ी है उसमें इसको बिल्कुल ना ले जाया जाए। ये 2 बातें उसने शर्तें रखी थी उसने 2। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो सिरे से इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि डॉक्टर सदरलैंड ने कोई हाथ लिखा था। नहीं, उसने दी होगी, उसके बारे में लोगों ने लिखा है कि उसने कंडीशन लगा दी थी, क्योंकि आप उस खत के बगैर डेड बॉडी को उस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वबाई हैजे का सीजन था वो, और मिर्जे को वबाई हैजे के हैजा ही हुआ था, और उसको सारे फुल स्केल सिम्टम्स थे उस बात के। इसके देखें डायग्नोसिस जो है ना, कॉलरा इसको कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, इसका प्राइमरी डायग्नोसिस क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस पर है, जैसे इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया,
और लो ग्रेड फीवर होता है, इसमें हाई ग्रेड फीवर बहुत कम लोगों को होता है। और ये सब कुछ मिर्जा कादियानी को अबंडेंट था मरते वक्त। और दूसरा इसका डेफिनेट डायग्नोसिस जो है ना वो माइक्रोस्कोपिकली स्टूल कल्चर से किया जाता है। विब्रियो कॉलरा उसका नाम है ऑर्गेनिज्म का, उसको कल्चर करें और पॉजिटिव आए तो वो तो एक पक्का सबूत है। और उस दौर में विब्रियो कॉलरा को कल्चर करना एक रूटीन नहीं थी। और दूसरे मिर्जे का जो एपिसोड है वो कोई 12, 14, 16 घंटे जारी रहा। ये रात को 8 बजे सिलसिला शुरू हुआ और सुबह 10 बजे तक गया। आप देखें 14 घंटे का वक्त है। अगर वो एक दिन और जिंदा रह जाता तो हो सकता है कि सैंपल लेकर वो विब्रियो कॉलरा भी लेबोरेटरी में कल्चर करके एक पॉजिटिव डायग्नोसिस दे दे, लेकिन वो तो एवं क्या हो गया। नहीं तो डॉक्टर साहब उस वक्त ये टेक्नोलॉजी थी 1908 में? हाँ, कल्चर की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और विब्रियो कॉलरा जो है ना वो बहुत पुराना पहचाना हुआ ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये एक वबाई हैजा तो बड़ा आम है सदियों से। ये 20वीं सदी के शुरू में विब्रियो कॉलरा उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, बल्कि 1917 में उन्होंने ईथर भी ढूंढ लिया था कि जिससे आदमी को एनेस्थेटाइज किया जा सके। तो 1917 से जब से 20वीं सदी शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन में एडवांस होना शुरू हुई बड़ी तेज़ी के साथ। बल्कि 19वीं सदी के आखिर में भी मेडिसिन काफ़ी बदलती जा रही थी। अगर आप देखें ना, मिर्जे का ने एक दवाई बनाई, एक ड्रम बनाया जो गंद मिलता था और पेशाब भी उसी में करता था, फिर लोगों को देता था। तो वो ड्रम भरा हुआ था तो लोगों ने शिकायत कर दी अंग्रेज को कि देखो ये तो लोगों को मार रहा है, लोगों को नुकसान हुआ होगा। तो उस वक्त की हुकूमत ने वो लंदन भेजा सैंपल उसका, फिर उन्होंने एनालाइज किया और लांसेट नामी जर्नल है मेडिसिन का, उसमें उन्होंने रिपोर्ट शाया की कि ये बिल्कुल वाहियाती है, इसमें किसी मर्ज का इलाज नहीं बल्कि इससे उल्टा नुकसान होगा। तो आप देखें तो एनालिसिस की पावर थी तो वो शाया हुआ ना लांसेट में। हाँ, तो ये लेट 19th सेंचुरी से मेडिसिन की जो बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की जो फाइंडिंग्स हैं वो चल रही हैं। बल्कि 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ है उसमें एनेस्थीसिया इजाद हुआ और उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जरासीम का आजकल अल्सर होता है एक ख़ास जरासीम, हेलिकोबैक्टर कहते हैं उसको, है पहले उसका नाम हेलिकोबैक्टर स्पाइरैलिस था, आजकल उसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है। वो अल्सर करता है मैदे के फ़ौरन बाद छोटी आंत में, तो अगर इसको इलाज कर दिया जाए इसका तो अल्सर खुद बहुत ठीक हो जाता है। तो इसकी असल इलाज जो ढूंढा गया था कि ये मैदे में ऐसा एक जरासीम है हेलिकोबैक्टर नाम का, वो सन 1927 का वाक़या है। ये एडनबरा के एक पैथोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, लेकिन इसका इलाज सन 1985 या 86 के करीब उन्हें पता लगा और सन 1994 में पहली मरतबा सक्सेसफुली इसकी इरेडिकेशन की गई। और क्योंकि उसके बाद एक ऐसी दवाई आई जो एसिड को कंट्रोल करती है, उसे पीपीआई कहा जाता है। तो जो पीपीआई थे एसिड इनहिबिटर वो पहले हमारे पास नहीं थे, तो उनका कम्बिनेशन मिलाकर जब इसको मतलब 2 एंटीबायोटिक्स देते हैं, एक है मॉक्सिसिलिन देते हैं और दूसरा मेट्रोनिडाजोल या क्लेरिथ्रोमाइसिन, 7 दिन से 14 दिन तक ये उसके पीपीआई जो है एसिड सप्रेसेंट के साथ आप देते हैं तो इसका बिल्कुल इरेडिकेशन हो जाती है। तो ये सारी इजादें जो हैं 20वीं सदी की इजादें हैं और अक्सर इजादात जो हैं वो उसके फर्स्ट हाफ में शुरू हुई। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैं 6-7 साल पहले की बात है, मैं एक दफ़ा ना एक इनका प्रोग्राम सुन रहा था, डॉक्टर याया के साथ बैठा हुआ था, इनका एक मुरब्बी होता था, कमर उसका नाम था, और बाद में फिर कादियानी छोड़ के मुल्हिद हो गया था 4-5 साल पहले। किस मुल्क में था? ये इंग्लैंड में था। कमर?
हाँ बड़ा कमर। पहचाना हुआ नाम लग रहा है, उसका पूरा नाम क्या था? अब पूरा नाम डॉक्टर साहब तो बी वेरी ऑनेस्ट इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। वो बड़ी अजीब सी शक्ल थी उसकी, भारा सा जिस्म था, स्याह सा अच्छा, चेहरा था। नहीं तो इनके खैर सबके चेहरे लानती हैं, जितने भी मुरब्बी है ना, कोई भी अच्छे वो इसका प्राइवेट सेक्रेटरी देख लें, वो क्या नाम है उसका, वो सबसे लानती शक्ल का तो वो मुरब्बी है जो इसका प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो बहरहाल बाद में जो है ना कमर ये मुल्हिद हो गया था। अच्छा, इसमें ये ये सारे ही मुल्हिद हैं भाई, आपको गलती लगी है। ये जो मसरूर गधा है ये भी मुल्हिद है। हाँ नहीं डॉक्टर साहब वो तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये कादियानियत मैं अक्सर गिरफ्तार भी करता हूँ, ये इल्हाद की माँ है, इसका एंड जो है ना तो यही होता है। खैर बहरहाल तो उस प्रोग्राम में जो है ना ये याहिया और कमर ये आपस में ये बात कर रहे थे कि जनाब हम चैलेंज करके आपको कहते हैं कि आप किसी भी जो है ना डॉक्यूमेंट से ये बात साबित करें कि लाहौर पंजाब या इसकी गिरदोनुमा में 1908 में हैजे की वबा फैली हुई थी। तो इसको फिर बाद में मैंने चेक किया था मेडिकल के जर्नल में भी, और फिर इवन मुख्तलिफ किस्म के जो उस ज़माने में लोगों ने एक दूसरे को खत लिखे हुए थे अंग्रेज़ों ने, वो भी मैंने निकाल लिए थे। तो उसमें बिल्कुल इस बात का जिक्र था कि 1907-1908 में लाहौर में वबाई हैजे की जो थी ना वबा कॉलरा की वो फैली हुई थी। देखिए अगर ना भी फैली हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। हैजा जो है ना बड़ी कॉमन चीज़ है पाकिस्तान में, और लाहौर में भी बड़ी कॉमन चीज़ है। दो किस्म का होता है, एक एंडेमिक होता है, एक स्पोरेडिक होता है, और पेंडेमिक बहुत रेयर है तीसरी किस्म। एंडेमिक वो होता है जो पूरे शहर में फैल जाए, स्पोरेडिक वो होता है जो किसी किसी को हो। अक्सर केसेस स्पोरेडिक होते हैं, और सबको पता है कोई साल ऐसा गुजरता नहीं जब किसी को वबाई हैजा नहीं हुआ होता है। ठीक है, वबाई ऐसे कि एक ख़ास जरासीम है, एक ख़ास उसका साइंस और सिम्टम्स हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह। लेकिन मिर्ज़ा जब मरा था तो उस वक़्त ये बहुत सारे लोगों को था लाहौर में, और वहाँ पर, और वो मौसम भी हैजे का था। हैजा होता है कि मार्च अप्रैल मई के महीने में हैजा, और मई तो पीक टाइम है ना हैजे का। तो इसने मांगी थी अल्लाह से मौत हैजे की या ताउन की मौत, तो इसने मरना ताउन या हैजे से था ना, प्लेग तो नहीं थी उन दिनों, तो हैजे से मौत हो गई इसकी। हाँ तो डॉक्टर साहब वो पेंडेमिक उन दिनों में वाकई जो है ना वो फैली हुई थी लाहौर और उसके गिरदोनुमा में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरे से डाटा सारा डिलीट हो गया। और मेरे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इन्होंने देखें, ये जाहिलों के बच्चे हैं, मिर्जा खानदा देखें, ये गुर्बत इनमें बहुत थी हमेशा से। आप तो लूट मार के है ना, अगर इनके इतने गरीब ना होते तो ये किसी से चेक करा लेते कि मैं किताब लिख रहा हूँ, उसमें हकायक जो हैं कहीं इनके खिलाफ तो नहीं जा रहे। इन्होंने लिखे और फिर उनको तब्दील भी किया, और ये सारे मतलब इन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त एविडेंस लिखी है कि मिर्ज़ा पक्का शराबी था। वो वाक़या इन्होंने सीरतुल मादी में लिखा हुआ है कि उसके मुंह से खून आया, ये सिर्फ शराबी को ऐसे आता है। हमें इस बात का पक्का इल्म, और वो हमारे लिए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। और इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें, जो इसने मौत का मंजर मिर्जे के लिए लिखा है, उससे ज़्यादा इबरतनाक मौत हो ही नहीं सकती। कुरान के मुताबिक जो झूठे वही का और झूठी नबूवत के दावे करते हैं, वो इसी कुत्ते की मौत मरते हैं। और मिर्जा ताहिर को देख लो, मैं कहता हूँ उसके जिस्म से इतनी शदीद बदबू उठी कि दूर दूर तक गई। जो बाहर उस रात लोग खड़े थे, उन्होंने भी रुमाल रख लिए अपने नाक पर, इतनी शदीद बदबू उठी उसके। ये तो इनकी हालत है। और फिर इन्होंने खुद उसको तो वबाई हैजा हुआ, मिर्जा ताहिर को तो इन्होंने जहर दे के मारा। लुकमान से जहर दिया, और जहर दिलवाने वाला इसका वो प्राइवेट सेक्रेटरी और मेजर महमूद मलिक और ताल मुजीब राशिद और रफीक हयात से, ये 4 आदमी तो पक्के इन्वॉल्व थे इसमें। हाँ, हमें तो आदमियों का भी पता है, हम तो उनका सरेआम नाम बताते हैं, पढ़ लो इन्होंने। जी डॉक्टर साहब ऐसे ही है ये मुख्तलिफ। फिर वो यही बात है ना कि अगर तो हम जो बात कहते हैं अगर झूठी है, तो फिर तुम जो शवाहिद है वो क्यों मिटा देते हो। अब ये देखें ना, मिर्जा ताहिर की मौत का आपने जिक्र किया, नहीं, ये अखबारों में लिखा हुआ है, मैंने अखबार है मेरे पास।
हाँ नहीं, वो मैं यही बात करने लगूँ ना कि मिर्जा ताहिर की मौत का आपने जिक्र किया ना, तो मिर्जा ताहिर की मौत की जो डेड बॉडी थी, वो आप देख लें, उसका होंठों का रंग भी बदल गया, उसके काला चेहरे का मुंह रंग हुआ भी हुआ बदल था गया। जी, रंग क्या बदलना है। बाकायदा उसकी वीडियोस और तस्वीरें थी, लेकिन इन लोगों ने वो ऑफलाइन करवा दी हुई हैं। अब आप ये इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। देखें जी, मैंने तो फिजिकली देखा था, आप वीडियो कह रहे हैं, मैंने तो वहां खड़े होकर देखा था उसे, गौर से पाउडर थोपा हुआ था इन्होंने बदतमीजी के साथ, उसमें भी क्रैक पड़े हुए थे क्योंकि दूसरा दिन हो गया था बॉडी को, हम्म तो वो क्रैक के नीचे से काला मुंह नजर आ रहा था, स्याह हुआ था मिर्ज़ा ताहिर का मुंह। हम्म। और इन्होंने उसके लिए जो बॉक्स था वो भी कुछ स्पेशल मेटालिक बनवाया था स्मेल की वजह से। पता नहीं, मतलब बाहर देखने से तो वो लगता था आम सा, शायद इन्होंने ये बनवाते हैं ये अपनी कब्रें जो है ना, इसमें पता नहीं, खुदा की लानत है, इस्लाम में ऐसा है कि बगैर ताबूत के दफन किया जाता है, उसकी वजह होगी कोई, लेकिन ये अपनी बॉडियों को पक्का करके, और जो ये कब्रें, इवन वो जहन्नमी मकबरा नहीं रब्वा में, वहाँ भी ये एक पहले ईंटें लगाते हैं और ईंटों का बॉक्स सा बनाते हैं ज़मीन में, फिर उसके अंदर ये बॉक्स रखते हैं बॉडी वाला, फिर उसके ऊपर रेत डालते हैं, फिर ऊपर से ईंटें लगा के बंद करते हैं। तो उससे बॉडी जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर रहती है, क्योंकि इनकी सज़ा ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा ऐसा करते हैं। लेकिन अपना शाह साहब, अब इन्होंने पता रब्बा में क्या काम किया है? जी, इन्होंने अब रब्बा में क्या ये काम किया कि आप इन्होंने, इसे रब्बा कहते हैं, आप तो लगता है पुराना जानते हैं इनको। मैं शाह साहब जमा पला ही वहीं पे हूँ। किधर है, चनाब नगर में? हाँ जी, अच्छा अच्छा, कौन से एरिया में? मुस्लिम कॉलोनी में। अच्छा, वो जो दरिया के उस, वो जो उस सड़क के पार है? जी जी अच्छा, वो सड़क के पार वाला हिस्सा। जी जी। हाँ, नहीं नहीं, मैं भी जानता हूँ सा, एक एक चप्पे को जानता हूँ चनाब नगर के। मैं ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ शायद ਸੌਰੀ एक ਸ਼ਾਹ सवाल मेरे कंप्लीट कर लें जो। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ शायद भाई अपना अपना शाह साहब, पहली बात ये है कि हम मिर्जे को जानी कहते हैं, लेकिन मिर्जा ही हमारा गुस्सा करते हैं कि किस बात का गुस्सा करते हैं? कि भी तुम उसको जानी क्यों कहते हो? लौंडेबाज कह दिया करें, नहीं सुने ना, सुने ना, सुने। काजी यार मोहम्मद की बीवी कह दिया करें, कुछ नहीं तो सुने, मानेंगे। मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुनो। अब ये नीचे सिद्धू ने कहा है कि मिर्जा जानी है, वो भी ये भी कादियानी है, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने पता क्या शुरू किया तरतीब, वहां पे इन्होंने ऑलरेडी कब्रें बना दी हुई हैं। किस जगह पर, आम कब्रिस्तान में या जन्मी मकबरे में? जनमी में, हाँ नहीं, जन्मी मकबरे में इन्होंने कितने बनाए हुए हैं? आम में भी अब ऐसे ही कर दिया इन्होंने। क्या मतलब, वो खोद के रखी होती हैं? जी जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना उसको खोद के साइड पे ईंटें लगा के उसको बनाया हुआ है। जो इन्होंने अब नया सिस्टम शुरू किया है ना इनका, वो नया सिस्टम ये है कि इन्होंने ऑलरेडी कब्रें बना दी हैं, अब जिसने खरीदी है ना उसने उसी के अंदर दफन होना है। नहीं, वो तो पहले तो ये 800 रुपया लेते थे या 500 रुपया। नहीं, अब ज्यादा ले रहे हैं ये, अब तो कितना? 30, अब तो अपना शाह साहब ये 28,500 और 32,300 रुपया तो कब्र पक्की का ले रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब पक्की छोड़ दें, जो कब्र होती है जिसमें दफनाते हैं, जी जी, तो उसका कितना लेते हैं आम कब्रिस्तान का? उसका मेरा ख्याल इन्होंने 1350 रुपया कर दिया। हाँ चले, वो तो इतना नहीं है, खैर वो हाँ। ठीक ही है, वो तो उसकी मजबूरी भी है। मकसद ये है कि इन्होंने ऑलरेडी कब्रें बना दी हुई हैं, अब जिसने आना उसको अंदर उतारना, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। हाँ, वो ऐसा तो काफी सालों से ऐसा कर रहे हैं हाँ कि इन्होंने कब्र खोद के रखी होती हैं। हाँ वो जो गोरकुन नहीं है जिसका घर है उधर कब्रिस्तान आम में, हाँ जी हाँ जी वो तो खानदानी गोरकुन है उनके, हाँ जी। तो वो खबरें अब वो खोद के रखते हैं, और इन्होंने गैर कानूनी तौर पर पहाड़ी के साथ वाला हिस्सा इनका नहीं था जहाँ पर ये, वो मैं बताता हूँ आपको, वो जो जगह थी ना, वो जगह कुछ हमारे मुसलमानों के अंदर भी अपने ज़मीर को बेचने की आदत है ना। यहाँ पे ना एक क्रश प्लांट लगा हुआ था,
उस क्रश प्लांट के साथ क्रिश्चियन का कब्रिस्तान था। अच्छा ठीक है, उस क्रश प्लांट के साथ क्रिश्चियन का कब्रिस्तान था। और वो जो प्लांट वाली जगह थी ना, कुछ हमारे ही मुसलमान लोग थे जिन्होंने इनसे पैसा लेके वो जगह इनको दी थी। कानूनी तौर पे ये जो जगह बनती है, ये जगह बनती है महकमा मादनियात की, क्योंकि वो पहाड़ी जोन सी है मादनियात में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अभी इन्होंने पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था, फिर इन्होंने पटवारी के साथ, गिरदावर के साथ, एसी के साथ मिल मिलाप करके ना तो इसका नक्शा चेंज करवाया। अच्छा इसका जब नक्शा चेंज हुआ, जब ये चार दीवारी शुरू हुई थी, उस वक्त हम मुसलमानों की और इन काफरों के साथ काफ़ी बहसम बहस हुई थी, काफ़ा मसला ख़राब हुआ था। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब हर चीज़ इन्होंने कागज़ों में चेंज करवा ली, उसमें फिर क्या कोई कर सकता था। अच्छा नहीं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान यही कहती है कि गैर कानूनी कब्जा है। जी जी बिल्कुल गैर कानूनी कब्जा है, 100% गैर कानूनी। हाँ, तो अब चूंकि वहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं तो उनको इस बात का बड़ा परेशानी है हाँ कि अब मुर्दे, वो तो मुर्दा लोग हैं, मर चुके हैं, हाँ तो इसका इनको खैर अब ये कहते हैं, ताज़ा खबर ये है कि इन्होंने लोगों से कहना शुरू किया है कि भाई तुम्हारे कोई रिश्तेदार पहले से मदफून है तो उनके दरमियान देखो, दरमियान में खोद कर एक और कब्र बना देते हैं। आपने सुनी है ये बात? जी बिल्कुल 100% ये सुनी है बात में। हाँ जी, तो ये भी, इसकी भी शायद अब बड़ी हैसियत, कानूनी या दूसरी हैसियत के अखलाकी तौर पर ऐसा जायज़ है कि नहीं। और उसमें ऐसा होता है कि पहले से जो मदफून है उनकी हड्डियां या जिस्म निकल आता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे जी कि जनाब मिर्ज़े की जो है वो मरा था, वो लाहौर में था, जी जी, ब्रांड और रोड पर। जनाब मिर्ज़े की मिर्ज़ा दफन हुआ था कादियान में। हाँ, ठीक है। शुरू में, आजकल नहीं है वहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मरज़इयों ने जो रबुए में जो इनका कब्रिस्तान है, जी उनकी 4 दीवारी है उस कब्रिस्तान की, और वो 4 या 5 फुट की दीवारें हैं। नहीं नहीं, अब उस वो 6-7-8 फुट की दीवार। चलें जी, इतना कर लें, वो चलें उस 4 दीवारी के अंदर जी एक और 4 दीवारी है जो कि 4 या 5 या 10 कब्रें हैं उसमें। हाँ, बात ठीक है, वो सिर्फ 3 एक फुट में की दीवार है उसके। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो शख्स खड़ा है, अगर आप इसको जूम करके देखें ना, तो ये मिर्ज़े कादियानी की कब्र उन्होंने बनाई हुई है। नहीं तो नहीं, ये मतलब चनाब नगर में? जी नहीं नहीं, चनाब नगर में मिर्ज़ा कादियानी की डॉक्टर कोई साहब, ये कब्र आपके सामने है, यही तो मेरा सवाल है। नहीं। ये जो है ना, ये गुलाम है। शाह जी जरा तुसी दसो इन्होंने। नहीं नहीं, एक मिनट मुझे देखने दें, मैं इसको बड़ा करूं, मुझे हाँ ये देखें, मैं ख्याल हाँ ये हो गई। नहीं, ये चनाब नगर की थी नहीं, ये तो कादियान की है। तो सही नहीं यार, यही तो सवाल है मेरा, मेरी जान से टोटे। ये कादियां दी है। नहीं मैं बताता हूँ आपको। हाँ कादियां, ये पीछे जो दीवार है ना जी, ये सफ़ेद दीवार जो है ना, इस तरह की नहीं है वहाँ पर। हाँ शाह जी, तुसी दसो। मैं अब आपको बताता हूँ, ये ना अपना बात है कोई 13-14 की ना। अच्छा उस वक्त ना एक नून लीग का ना मिनिस्टर था गिलगित बल्तिस्तान का ना, बरजीस ताहिर सांगला हिल का था। अच्छा वो आया था सरकारी दौरे पे यहाँ पे ना। अराई हैं, चिन्योट के हैं, यूसुफ ख्याली साहब, उनके साथ उसका बड़ा अच्छा था, उनके थ्रू आया था। तो उसने ना ख्वाहिश की थी कि मैं इस जन्नत दोज़ख को देखना चाहता हूँ ना। उन्हें उरा लबनिया थी। देख उस वक्त का जो इनका इंचार्ज था ना, वो शबीर बाजवा था। अच्छा शबीर बाजवा लेके गया था उस 4 दीवारी के अंदर। अच्छा ठीक है, उस 4 दीवारी के अंदर ले गया था। तो ये कब्र मैंने उस वक्त वहां पे देखी थी। आपने ये मिर्जा गुलाम कादियानी की? लेकिन इस नाम नहीं मैंने पढ़ा था, मैं ऐसे बोलूं कि मैंने नाम पढ़ा था। सेम यही डिजाइन की वहां पे 4 कब्रें बनी हुई हैं। नहीं नहीं, 4 नहीं है, 6 हैं। 6 हैं? हाँ जी, मे भी 6। हाँ 6 कब्रें। शाह जी मैं तुम दसना, मेरी गल सुन। जब आप उस गेट से एंटर हो ना, बड़ा गेट जो है,
बाएं हाथ पर एक कमरा है जो ऑफिस है, उसके साथ टॉयलेट्स हैं, ठीक है। दाएं हाथ पर ये अहाता खास वाली चार दीवारी छोटी सी बनी है, उसमें 2 लाइनें हैं, एक दाएं और एक बाएं। उसके सबसे आखिरी जो कब्र है वो उसका मतलब किसकी, उसके साथ एक खाली कब्र है, उस पर लिखा हुआ है यादगार मिर्जा ताहिर। आपने देखी है ना, मिर्जा ताहिर की कब्र है वहां, लेकिन उसकी बॉडी वहां नहीं है उस कब्र में। और बस उस पर यही सवाल है ना, यही सवाल है। हाँ, यादगार। आप देखें इस पर यादगार भी नहीं लिखा हुआ उन्होंने। और मिर्जा गुलाम कादियानी की कोई कब्र उस अहाते में नहीं है, उसकी यादगार भी नहीं है। बल्कि उसकी एक खास वजह मैं आपको बता देता हूँ जी जी शाहजी। उसकी वजह यह है कि मिर्जा कादियानी मुर्तद ने कहा था जी जी कि मुझे इल्हाम हुआ है कि ये कित्ता जो है इसमें दफन होने वाला जन्नत में जाएगा। अच्छा, यानी हाँ। वो चार दीवारी का। नहीं नहीं, वो कादियान वाले। अच्छा सर। वो चार दीवारी वाला नहीं। कादियान में अगर ये उसकी कब्र वहां बनाए चनाब नगर में, तो उसकी प्राइमरी वसीयत के खिलाफ होगी। जब इन्होंने हड्डियां निकाली ना, वो हड्डियां निकालने का मैंने अब्दुल मनान से पूछा था 2000 2000 में। मैं गया था वो टेक्सास में, तो मैंने बड़ा ख़ास उसको ढूंढ के उससे मैं मिला, और मैंने उससे 2-4 बातें पूछनी थी, और 1-2 और लोग भी साथ थे। तो उनसे मैंने एक सवाल अब्दुल मनान से ये किया था कि क्या वाकई इन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की बॉडी निकाली है कब्र से? तो उसने कहा बिल्कुल निकाली है। और उन्होंने बताया कि जनाब वो निकाली उस वक्त थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो इन्होंने निकाल के संदूक में बंद कर दी थी, एक लोहे के ट्रंक में बंद की थी, और उसको साथ लेकर आए थे। और वो कहाँ दफन है उसका जो सबसे आपने देखा ना कि गोल बाजार के पास एक अम्मा जहाँ यादगार है, बिल्कुल है वो जिस पर चेक बना हुआ है काले सफेद रंग का, बिल्कुल बना हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने दरमियान में बल्ब वाला डंडा लगाया हुआ है लोहे का। आपको पता है वो क्यों लगाया हुआ है? वो दारुल ज़ियाफत की तरफ जाते हुए हाँ, वो वही चौक आता है। हाँ, अच्छा, डॉक्टर साहब। वहाँ है मिर्जा कादियानी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। वहां पे क्या है मिर्जा कादियानी की? देखिए वहां पर इन्होंने वो, आपको मैं उसकी तफसील बताऊं, ऐसे है कि जब इन्होंने ये चनाब नगर की जमीन खरीदी ना पाकिस्तान बनने के बाद, 1 रुपया फी एकड़ के हिसाब से इन्होंने कुछ 100 एकड़ जमीन ली। तो वहां पर इन्होंने एक कमरा बनाया था। सही। वो कमरा था जहाँ पर इनकी अम्मा जान वो नुसरत जहाँ बेगम, सारों की बेगम वहीं रहती थी। तो उन्होंने कहा था लोगों को मिलने जुलने में आसानी हो इससे। तो कहा जाता है कि उसने उसी कमरे में एक खड्डा गोर के वो संदूक दफन कर दिया था। डॉक्टर साहब, नहीं, ये बात बड़ी जरूरी है शायद साहब, जरा पूरी होने दे। जब मिर्जा ताहिर वहां से फरार तो नहीं कहना चाहिए, जब इसको धिक्का दे के निकाल दिया मुल्क से है, वो तो इसको टिकट भी दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने, आपको पता है ना। मिर्जा ताहिर को एक ब्रिगेडियर अपने साथ लेकर गया था जहाज में बिठाने के लिए, और उसको जाते हुए उसके लफ्ज थे कि पुत्र वापस ना आई। तो कहा जाता है कि उसके फौरन बाद मिर्जा ताहिर ने वो संदूक खुदवा के निकलवाया और उसको इंग्लैंड ले आए थे। वरना वो जो यादगार है ना, उसमें डंडा लगाने की वजह ये थी कि वहां पर मिर्जा कादियानी की बॉडी एक वक्त तक इन्होंने रखी। हाँ जी, हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, यादगार चौक भी कहा जाता है उसको, यादगार चौक कहते हैं। मतलब जब दारुल ज़ियाफत की तरफ जाओ तो आखिरी चौक वही आता है, वो 3 कोलों वाला वो चौक सा चबूतरा सा बना हुआ है, उसके ऊपर वो बांस फिक्का साहब, आपको कैसे इतना इल्म है कादियानियों का? चाचा फीका अपना बंदा है डॉक्टर साहब, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। नहीं अपना बंदा ना, मतलब इन्ना दा इल्म बड़ा जबरदस्त है। वो डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी स्टोरी सुनाएंगे। जाता रहा हूँ ना, आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। चाचा फीका ने बड़ा काम डाला हुआ, मेरी ब्रॉड पे माशाल्लाह सारी हीरो आते हैं।
जी। मैं तो इन्हें जानता हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि आपने भी मेरी तरह रिसर्च इतनी गहरी कर रखी है। नहीं डॉक्टर साहब, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀ ਕਰਤਾ ਦੱਸਣਾ, ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? 1947 में। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕੇ ਬਾਅਦ? नहीं, आने से पहले, ये कोई अगस्त 11 या 12 का वाकया है। डॉक्टर साहब, मैं अपने वालिद साहब की जो है ना वफात का जिक्र कर रहा हूँ। जी। वो फौत हुए माशाल्लाह। जब से वो उन्होंने आज अपनी सारी ज़िंदगी में शेव नहीं करवाई उन्होंने। मैंने अपने घर में उनकी यंग पिक्चर देखी है, इतनी माशाल्लाह लंबी दाढ़ी, ठीक है। और वो मेरे पीरो मुर्शिद भी मैं उनको मानता हूँ, ठीक है। आप माँ बाप तो हमेशा पीरो मुर्शिद होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हुआ कुछ यूं कि वो फौत हो गए। जी। जब फौत हुए तो तकरीबन 6 माह के बाद मुझे ख्वाब आई। एक ही दफ़ा मुझे मिले हैं वो ख्वाब में, और वो ये ख्वाब थी कि मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं और प्लीज़ मुझे गुस्ल करवा। रात के 3 बजे ये मुझे ख्वाब आई है, और मैंने सुबह उठ के जनाब, मैं उठा हूँ पसीने में शराबोर था। उस टाइम पे ये इंटरनेट में इतना यूज़ नहीं करता था। मैंने सीधा भाई को फ़ोन किया कि जाके कमर चेक करो। वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, कब्रिस्तान में फ्लड आया हुआ था, और एक मोरी हो गई उनकी कब्र पे, और जनाब वो कब्र से ना गंदा पानी जो है वो कब्र में जाना, वो गंदा नहीं, फ्लड का पानी, ठीक है। डॉक्टर साहब, वो पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। क्यों कि जहाँ पे उस कब्रिस्तान में जनाब 6 माह के बाद, डॉक्टर साहब ये बात याद रखिएगा, 6 माह के बाद गर्मियों का दिन था, और डॉक्टर साहब जब उनको निकाला गया तो उनकी, मैं कहता हूँ कि कफन भी मैला नहीं हुआ था, और पूरे के पूरे शहर ने उनका जनाजा पड़ा था। ये आग की तरह फैली थी बात कि एक बंदे को 6 माह के बाद जनाब उनकी जो है वो इस तरह से उनको निकाला, दोबारा गुस्ल किया, दोबारा जनाजा किया, दोबारा उनको दफनाया, नया कफन दफन डाल के। तो डॉक्टर साहब, आप इस मिर्ज़े कादियानी खंजीर की बात कर रहे हैं, और मैं ये शौक हो गया, मैं ये शौक हो गया हूँ सुन के कि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह इतने नेक शरीफ इंसान थे, ठीक है, और उनका कफन भी मैला नहीं हुआ 6 माह के बाद। मिर्जे ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ होने। तो डॉक्टर साहब ये बात बड़ी सोचने, और ये मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ, अपने माँ बाप के बारे में कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। नहीं तो ये बात सोचने और समझने वाली है मर्दियो, जिस बंदे दियां हड्डियां निकलियां, ठीक है, उसकी तो हड्डियां निकली, उसका जिस्म नहीं था वहाँ पे। इसीलिए तो ये कहते हैं ना, मतलब कादियानियों में झूठ और इफ्तराबाजी बेशुमार है, इल्हाद बेशुमार है। कादियानियत इल्हाद की माँ का नाम है। तो जाओ मर्दियो, आज जो है ना मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ कि जाओ जाके जिथे वो जन्नती मकबरे दे विच जिन्ने भी तुसीं दफनाए ने ना कंजरो, वहाँ तो आग के शोले उठते हैं। उथों तुसी कोई भी बंदा दी लाश सीधी सही सलामत ताज़ा तरीन कबर दी गल करना पिया, जे तुसी सही ते कोई उन्हां दी कबर दे लाश कढ लो ना, ठीक है, तो मैं अगों दूसरे अल्फाज नहीं कहने लगा, लेकिन मेरा चैलेंज है तुहानू, ठीक है, किसी बंदे दी भी। मुझे एयरफोर्स के एक अफसर ने वाकया सुनाया। कहता है जफर चौधरी जो कादियानी था और एयर मार्शल था, जब मरा तो उसके जिस्म को वहाँ से लाया गया अमेरिका से। कहता है जितनी बदबू उसके कफन से आ रही थी कभी आज तक नहीं सूंघी। उन्होंने उसका कफन एक और कफन में डालकर उसको सील करवाया, इतनी बदबू आती थी। और डॉक्टर साहब, अभी उस वाक़े के बाद ना मैं जितनी दफ़े भी पाकिस्तान गया हूँ ना, आज तक कभी मेरे वाला साहब की कब्र पे
پھول جو ہے نا وہ اس طرح نہیں وہ ہوتے ہیں نا کہ 1-2 دن کے پھول، تازہ ترین پھول، پتہ نہیں کون کون دنیا آتی ہے اور وہ وہاں پہ پھول ڈال کے جاتی ہے. یہ ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی باتیں. وہ گدی کے بچوں جس کی ہڈیاں گل گئیں ہیں، اس شخص، اس زندیق شخص کا حال لکھ دی لعنت مرضی ہوتا نہیں، ہے. عبد المنان نے یہی کہا تھا کہ جسم نہیں تھا، ہڈیاں نکلی. نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ اس کے پیچھے کچھ سائیکی ہے کیا بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا تھی نکالنے کس چیز کی؟ کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی انہوں نے جو ہڈیاں نکالی تھیں؟ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے ان کی. کوئی نہ کوئی فلسفی تو ہوگی. نہیں، میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتا سکتا ہوں کہ عیسائیوں میں جو سینٹ ہوتے ہیں نا ان کے، یہ ان کو دفن نہیں کرتے بلکہ ان کو ڈبے میں بند کر کے وہاں کھڑا کر دیتے ہیں کہیں پر، اور بعضوں پر ہیرے جواہرات سونا چاندی بھی لگاتے ہیں کیونکہ بادی تو خراب ہونی ہے اس کی. تو یہ پھر اس کی مرزے کا نجائز بیٹا آ گیا کو ہمیں پورا بھلا کہنے والا. جی نہیں چھوڑ دیں ان کو، بکواس کرنے دینی چاہیے ان کو. جو ہے نا چچا جی، ان کو وہ والی مار دیں جس طرح کسی ٹی مرزے کو دیتی تھی. آپ اپنی بات مکمل کریں پھر میں ایک معجزہ اب آپ چاچے فقے کی بھی بات سنیں گے. جا کے بندہ دیکھ سکتا ہے. آپ اپنی بات پہلے کمپلیٹ کریں. ہاں نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی. عیسائیوں میں، بعض خاص قسم کے عیسائیوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ ہڈیاں وہ تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں، لیکن مرزے کی ہڈیوں میں کون سا تبرک ملنا ہے؟ ایک جاہل، ذہنی مریض، شرابی، بھنگی، چرسی، فیمی، چور، ڈاکو، فراڈیا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ استغفار، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تسبیح، نہ جائے نماز، نہ اعتکاف، چور، ذہنی مریض، ایسا شخص جو ہے نا اس کو تو ہڈی رکھنے کے جہنم کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں نا، لیکن ہو سکتا ہے یہ کہ تبرک تلاش کرتے ہوں. نہیں وہ نہیں، آپ کو ایک بات میں بڑی حیرانی کی بتاؤں، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو خلیفے ہیں انہیں پکا پتہ ہے کہ یہ حرامی ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ بات ان سے پوچھی جاتی ہے اور جو لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا، عام قادیانی نہیں پوچھ سکتا، اسے جماعت سے نکال دیتے ہیں. اگر آپ کا جماعت سے تعلق نہیں اور آپ کون تک ایکسیس ہے اور وہ آپ سے مطلب آپسی ریکارڈ جب وہ اپنی جماعت میں نہیں ہوتے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات وہ خود بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ سوال پوچھیں، آپ کو صاف پتہ لگے گا بندہ ملحد ہے. مرزا طاہر صاف کہا تھا اس نے مجھے، اس نے کہا تھا اس زندگی، اس موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو غلط ہے، یہ میری اور مرزا طاہر کی گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی سنی سنائی نہیں سنا رہا ہوں. میں نے اسے کہا تھا کہ موت کے بعد زندگی کا ثبوت ہے کیونکہ ہم کلوننگ کر سکتے. کہتا ہے غلط ہے، کہتا ہے جس کو جانور کھا جاتے ہیں وہ کہاں سے زندہ کیا جائے گا. تو میں نے اس وقت سوچا، میں نے اسے کہا کہ تمہیں بڑی غلطی ہے، اور اس وقت مجھے پکا اندازہ ہو گیا کہ شخص نہ صرف ملحد ہے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے خدا کی ذات پر ایمان ہے؟ میرا ڈائریکٹ سوال تھا مرزا طاہر سے. اور وہاں تو دو چار لوگ ہی بیٹھے تھے، بڑے پرائیویٹ سی ایک میٹنگ تھی. یہ محمود ہال میں ہوئی جو گریسن ہال روڈ پر ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کے بارے کہتا تم نے دیکھا ہے کبھی خدا تعالیٰ؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، یہ تو ایمان بالغیب ہے. کہتا ہے بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں. یہ تھا مرزا طاہر کا جواب، بس کہانیاں بنی ہوئی ہیں. کر لو جی مرزائیو، ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ، ਇਹ ਦਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ ابھی اس کی آ رہی ہے نا، اس کی لڑکی امتل وارث کی کہانیاں. سنا ہے کہ ایک دو نہیں کئی بوائے فرینڈ ہیں، کئی لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ جو اس کا لڑکا ہے نا، اس کی بیوی بھی، بلکہ وہ تو اسے چھوڑنا چاہتی ہے، اور یہ کچھ دیر سے جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے دھمکی شمکی دے کے اسے
मुझे तो लगता है कि ज़बरदस्ती हिस्से बेजा जिसे कहते हैं कानून की ज़ुबान में, उसमें रखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये घसीटी की कब्र किधर है? सॉरी, निच्चो की। नच्छो की कब्र तो जी। उधर है चनाब नगर में, वहाँ हेलो, पर हेलो। जो अहाता नहीं बना हुआ उसमें बाएं हाथ पर उसकी कब्र है, उस पर लिखा हुआ है हजरत अम्मा जहाँ उर्फ लानती कसीती उर्फ नच्छो। हम्म। हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, वो उसका माई घसीटी का पूछ रहे हैं, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की चिराग जमात। बीबी की नहीं 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 कादियानी। नहीं नहीं, मैं निच्चो नुसरत जहान नहीं, नच्छो रंडी की की। चनाब नगर में जो अच्छा। जहनवी मकबरा है ना, उसके अंदर एक छोटा सा अहाता और है, अहाते हाँ। के अंदर अहाता, वो जिधर इनके खानदान की कब्रें हैं। सारे लोग खानदान के वहां पर नहीं है, कुछ खास लोग हैं। तो जी वो नहीं, मुकम्मल तो उधर है ही नहीं है ना, वैसे ही वो है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं आपको मिर्जा बता रहा हूँ ना बशीरुद्दीन कि मखदूम खानदान शायद। का हर आदमी उस छोटे अहाते में नहीं है, तो जी बल्कि वहां पर खास लोग हैं। एक आदमी खानदान से बाहर है जो वहाँ, वो जफरुल्लाह चौधरी लानती है, वो वहां पर, वो जो गद्दार जी आजम था। बिल्कुल। जफर चौधरी की खबर भी अहाते से बाहर है, वो जो एयर मार्शल था। अबैदुल्ला अलीम जो था इनका वो शायर, उसकी कब्र मैंने देखी है, वो कराची में थी, पोर्ट कासिम वाली साइड पे। हाँ, मतलब इन्होंने तो अब फ्रेंचाइज बना रखी है जहन्नमी मकबरे की, मतलब कहते हैं जहन्नम का। आपने कभी किसी आदमी को जहन्नम का टिकट खरीदते देखा है? मरदई नू देख लो जिन्हें वसीयत की है। जी। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਬਿਠਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਮਿਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਨਿਆਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਮਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਏ, ਮਰਾਕੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਟਲੀ ਲੁਹਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ। हाँ जी। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੂੜੀਆ ਰਾਮ। ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਮਸਜਿਦ ਮਕਤਬ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ। आप रलिया राम की तो नहीं ਮਸਜਿਦ बात ਦੇ कर ਵਿੱਚ रहे? ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। रलिया ਉਹ राम ਮੌਲਵੀ तो ਸਾਹਿਬ नहीं? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ, ਇਹ ਉਹ ਡੇਲੀ ਉਹਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, हिंदू? ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੂੰ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾੜੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਡਾਲਟਾ ਘਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ, ਥਿਨਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪਰਿਟ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਪਰਿਟ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਫੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਰਿਟ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਡਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ भी। वैसे मैंने ये ऐसी बातें सुनी है, लेकिन मैंने कभी खुद नहीं देखी इस किस्म की बात। नहीं, मुझे तो पता ना, अगर किसी ने जाना ना उस कब्रिस्तान के अंदर, मैं बताता हूँ, उसी नहीं, गांव का बात तो कब्रिस्तान है। होगी, लेकिन बात है कि मैं बड़ी ये अजीब, जैसे मैं आपको एक और मशहूर बात बताऊं जो इससे ज्यादा मशहूर है। जी। किंग अब्दुल अजीज था ना, जिसने सऊदी अरब पर कब्जा किया,
जी और उसने गुंबद खिजरा को उठाने की कोशिश भी की। गुंबद खिजरा पर अगर कभी आप मदीना मुनव्वरा जाएं तो वो कुंडा अब भी नजर आता है, नीचे खड़े देखे ना, गुंबद खिजरा पर ऊपर करके एक कुंडा लगा हुआ है, उसने वो कुंडा लगवाया, गोल सा है, और वहाँ पर वो क्रेन के ज़रिए गुंबद खिजरा को उठाना चाहता था, तो उसकी जंजीर निकली और उसके मुंह पर आके लगी और वो एक आंख से काना हो गया। जब वो मरा ना तो उन्होंने उसे जन्नतुल बकी में दफन किया, लेकिन सुबह के वक्त आए तो कहते हैं कि उसके जिस्म बाहर पड़ा था। उन्होंने 3-4 दफा उसे दफनाया, हर मरतबा उसका जिस्म बाहर पड़ा होता था। आखिर वो उसे जन्नतुल बकी से ले गए और कहीं और नामालूम जगह पर दफना दिया। तो ये ज्यादा मशहूर कहानी है इससे जो आपने बताई। तो ये कैसे होता है, मतलब आंखों से कभी नहीं देखा, मुझे कभी लगता है कि शायद लोगों ने अपने इत्तेकाद की वजह से नहीं, मुझे तो पता ना, क्योंकि मेरे ननियाल थे और मेरी होशो-वास की वो बात है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ना मौलवी साहब ने उसका जनाजा पढ़ाया और कब्रिस्तान में दफनाया, मुसलमानों वाली में। अच्छा, तो वो लोग जो फैमिली थी ना उसकी बाकी थी, वो भाई इस बात से डर के भाग गए थे इंडिया, और खुद जाके इंडिया पछताते थे, बोलते थे हम लोगों ने गलती की। उधर हम तकरीबन 3-4 जन काम करते थे और 2 फिर खाते थे अच्छा खासा, और इधर जब से आए हैं एक बंदा हमारा काम करता और हम बाकी फारग हैं, वो काम ही नहीं मिलता। यहाँ और आज पर भी उस बंदे की कब्र के ऊपर रूड़िया राम और ऊपर मुसलमान वाला, मुझे अभी नाम याद नहीं है, मैं उसकी तस्वीर मंगाऊंगा, वीडियो बना के बल्कि मंगा के अपलोड करूंगा। देखें उसका जो 2 नाम लिखे हुए हैं, एक रूड़िया राम शरई, और ऊपर बाद में कन्वर्ट उसको जब दफनाया जनाजा पढ़ के तो उसका अलग नाम उन्होंने रखा था फिर। हाँ देखें, बात ये है कि ये तो मुझे थोड़ी सी हैरत है कि वो मस्जिद का मौलवी शायद कुरान पाक पढ़ना ही जानता था शरीयत के हिसाब से। कुरान पाक कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बहुत सारे अरब मुसलमान नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे अरब ईसाई भी हैं, अगर आपको इल्म नहीं है। वो अपने बच्चों को कुरान, मैंने देखे हुए हैं, हमारा हक में भी है। हाँ, वो अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, क्योंकि कुरान पाक अरबी के एक बहुत आला नमूना है अरबिक लिटरेचर का। अगर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी अरबी सिखानी हो तो वो कुरान पाक ज़रूर पढ़ाते हैं उन्हें, हालांकि वो मुसलमान नहीं। अब कुरान पाक वो पढ़ते भी हैं, उन्हें समझ भी आता है, उनकी अपनी ज़ुबान भी है, वो काफ़ी हद तक इसे समझते हैं। लेकिन कुरान पाक के पढ़ने और पढ़ाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। बल्कि वो तो बात आपकी सही है, लेकिन हो सकता है बाद टाइम लोगों ने बाद में यही बोला था ना, उन्होंने बोला हो सकता है कि इसने पहले ही कलमा पढ़ लिया था। अब ये अल्लाह जानता घर है। वालों को ना बताया हो, क्योंकि उसके घर वाले भी बोलते हैं ना, बोलते हैं ये तो कभी भी किसी के वो हमारे हिंदुओं के कोई भी रस्म होती है ना, ये नहीं जाता। जी हाफिज साहब। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये बात आपसे पूछनी थी कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लोग कहते हैं कि वो कुछ मौजज़ात की इनकारी थे, क्या ये बात ठीक है? वो काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज शख्स था, और उसके जो इत्तेकादात थे ना, देखें एक बात मैं लोगों पर बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ और लोग इसको समझते नहीं हैं। आपको गैर मुस्लिम होने के लिए सारी बातें इस्लाम की छोड़नी जरूरी नहीं, बल्कि आपने सिर्फ एक ही रुकन का इनकार करना है और आप काफिर हो जाएंगे। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी में एक ग्रोह था, बहुत बड़ा ग्रोह लोगों का, जिन्होंने ज़ुकात देनी बंद कर दी, और बाकी इस्लामी शायर वो बिल्कुल करते थे और उनका ख्याल था वो मुसलमान है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा है कि वो गैर मुस्लिम थे। इसलिए कोई शख्स ये कहे कि हमारे 90% अकायद तो मुसलमानों वाले हैं लेकिन 10% नहीं है, तो वो काफिर, मुर्तद, दायरा इस्लाम से खारिज और जंदीक शख्स है। ठीक है,
تو کسی کو یہ کہنا کہ لو جی وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے, بس یہی ہے نا کہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا, قرآن کے مسلمہ اصولوں کا انکار اس نے کر دیا ہے. تو یہ بات سب کو یاد رکھنی چاہیے, کافر ہونے کے لیے صرف ایک بات کا انکار کافی ہے اور شرعی لحاظ سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ معجزات کے انکاری تھے, وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پانی میں رستہ بنا وہ ایک فزکس تھی, وہ ہواؤں کا رخ اتنا تیز تھا, ان کی سپیڈ اتنی تیز تھی, ان کی کوئی فرکشن تھی, انہوں نے اس کو اوپر کیا اور ایک رستہ بنا. چلو وہ ایک لمبی, لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ابھی یہ پچھلے دنوں میں مطلب کچھ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک نوٹ تھا 75 روپے کا, اس کے اوپر اس کی تصویر کیوں لگی؟ مطلب یہ کوئی بندہ نہیں کوسچن کرتا, مجھے تو وہ بہت برا لگتا ہے. آپ نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خرافاتی شخص تھا, اس نے اسلام کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی سر سید نے, اور میری نظر میں کافر, مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج شخص ہے. یہی میرا فتویٰ ہے جیلمی کے لیے, اور یہی میرا فتویٰ ہے وہ جو غامدی شخص, خبیث شخص ہے, ایک خرافاتی شخص جو اللہ تعالیٰ کو, یہ ملحد لوگ ہیں, یہ سب ملحد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ, وہ پتہ اگر آپ غور سے سوچیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ یہ قبول نہیں کرتا, میری عقل اس کو نہیں مانتی, میں یہ نہیں کر سکتا, اللہ کیسے کر سکتا ہے. یعنی وہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو اپنے برابر کمپیریزن کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر میرے برابر ہو جائے گا, میری عقل پر پورا اترے گا, تو پھر میں مانتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہوگی. اور اس لیے وہ تمام معجزات کرامات کے انکاری ہوتے ہیں, اور اس طرح کے لوگوں کو ہم بڑا اچھا جانتے ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں مانتے کہ قرآن پاک میں جو 309 سال صحاب کہف کی عمر لکھی ہے اور 950 سال حضرت نوح کی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر لکھی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اس کی تعویلیں پیش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کے شروع میں خدا تعالیٰ نے کہہ دیا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. کہ جو لوگ ہے نا کالے سیاہ دل کے کافر, کتے اور مرتد جو ہیں, وہ تعویلیں کرتے ہیں اور فتنہ کھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر کوئی چیز غیر واضح ہے جیسے معجزات ہیں تو ان کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. اور وہ لوگ جو اپنے علم میں راسخ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہر چیز پر ایمان لایا. جی سید صاحب 75 والے نوٹ کی میں آپ کو ایک سیکنڈ رکیو, آصف صاحب ذرا رکو. طارق جوید صاحب کون ہے جی اتنے بیٹھے تھے؟ اپنے طارق جوید صاحب, یہ پہلے بھی طارق جوید تو برلن تو میں. اچھا پھر ٹھیک ہے, اپنے بندے. ڈاکٹر صاحب کسی نے غلط نام نہ لکھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن ہے جی, وہ یہ کہ یہ جو لوگ مطلب کہ انسان پیدا ہوتا ہے آزاد, جی وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا, وہ صرف پابند ہوتا ہے اپنی شریعت کا, اپنے قانون کا, ٹھیک ہے, اور انسانیت کے دائرے میں. لیکن یہ جو لوگ ہم پہ مسلط ہوتے ہیں, جنہیں ہم مطلب اپنے اوپر مانتے ہیں, یہ جو ہمارے وزیر اعظم, صدر اور وزیر داخلہ جتنے بھی یہ سارے لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگ ہی جب اینٹی اسلام ہوں گے تو ہمارا آگے مطلب وہ جو ترقی اور جو معاملات ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں اس کا قرآن میں جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہمارے حکمران ہیں ان کے بارے میں کہا یہ اولو الامر ہیں. اور جب آیت آئی وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَیُطِیعِ الرَّسُولَ, کہ جو اللہ کی پیروی کرے اور رسول کی پیروی کرے, وَأُولُو الْأَمْرِ, اس کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں لگایا لیکن اس کو لکھ دیا کہ اس کا کہنا بھی مان لو. اگر اولو الامر ایک ایسا حکم جاری کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے اور وہ اسلامی حکومت میں ہے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ اسلام کے قانون کے مطابق اسلامی حکومت میں جاری کرتا ہے تو اس کی جائز ہے, اور اگر وہ غیر اسلامی کام کرے گا یا جو کام ڈسپیوٹیڈ ہے وہ کرے گا تو اس کے مجلس شورا کا جو نیشنل اسمبلی کہلاتی ہے پاکستان میں, اس کا فرض ہے کہ اس کو اتار دیا جائے
अब ऐसा वो कर सकते हैं या करते हैं? आपको मैं सच्ची बात बताऊं, हमारे आधे से ज़्यादा बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस मुल्हिद हैं, वो नाम के मुसलमान हैं, ना उन्हें इस्लाम का इल्म है, और उन्होंने अपना, हर एक ने अपना अपना इस्लाम गढ़ा हुआ है। ये तो अक्सर लोग भी करते हैं कि अपने आइडिया लेके आ जाते हैं। अच्छा सर डॉक्टर जी, साहब मैं ये एक सेकंड, हाफिज साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब अपनी लाइव ਤੁਸੀਂ ऑन करोगे? हाँ कर लेते हैं, क्यों?